ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ اننت ناگ کے ہانچی دنتر میں رمضان المبارک کے متبرک ایام میں پانی کا فقدان، مکینوں نے کیا محکمہ جل شکتی کے خلاف سخت برہمی کا اظہار۔ سی آر پی ایف 40 بٹالین کی جانب سے 6 اننت ناگ میں مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام، سینکڑوں ضرورت مند ہوئے مستفید۔ اور جکلی ریجیمنٹل سینٹر نے آج یعنی 15 اپریل 23 کو سری نگر میں اپنی پلیٹینیم جوبلی کی تقریب منائی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ہنچی دانتر کے رہائشیوں نے علاقے میں پانی کی عدم دستیابی کو لے کر احتجاج کیا، جبکہ احتجاجیوں نے پانی کی سہولیت میسر نہ ہونے پر محکمہ جل شکتی کے خلاف نعرے بلند کیے اور سخت برہمی کا اظہار کیا۔ مکینوں کے مطابق انہیں گزشتہ کئی دنوں سے پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مکینوں نے محکمہ جل شکتی کے ملازمین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ محکمے میں کچھ خود غرض عناصر ایسے ہیں جو انہیں پینے کے پانی سے محروم رکھ رہے ہیں، جبکہ مذکورہ علاقے کے لوگ کئی بار متعلقہ محکمے کے پاس گئے، تاہم ان کی فریاد پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے احتجاج کیا، ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا، 1 مہینے سے آتا ہے، ماہ رمضان ماہ مبارک تھا، ہمارے گھر میں پانی نہیں اویلیبل نہیں تھا، ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، ہم ندی پہ جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، ندی کا پانی پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو چکے ہیں، ندی کے پانی کی وجہ سے۔ فٹر جب آتے ہیں فی لینے کے لیے، وہ بولتے ہیں فی دو، ہم اگر نہیں دیں گے، وہ ہمارے گھر میں احتجاج کرتے، لڑائی کرتے ہمارے گھر میں۔ یہ کیا رول ہے، ہمارے گھر میں پانی ہے ہی نہیں، ہم کیا پیئیں گے پانی۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ وہ پانی کے مسائل سے دوچار ہیں اور حکام لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس گاؤں میں پانی کا بحران ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جبکہ نماز ادا کرنے کے لیے بھی انہیں نالے سے پانی لانا پڑتا ہے۔ تمن 3 پورن آب حظ، اس نلکس مطلب تیز چمو تک خاطر آب پھر واٹر پمپن ہند آب سہ خراب بیان کۄلہِ منٛز حظ مطلب ات بُتھ چھلنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو نہ حظ کتہِ یمنٕے گژھان تہٕ یمو دوٚپ ہے اتھ چھُ کیٛاہ تام پتے ہُہ مطلب کیٛاہ تام خطرٕ چٲبۍ تھاوان باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ۔ مقامی لوگوں کے مطابق انہیں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آلودہ ندی سے پانی لانا پڑتا ہے، جبکہ پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے کئی لوگ بیمار بھی پڑ چکے ہیں۔ اس ترائن حظ آب پائپہ وائپہ وٹن اس فیس دن فیسس پہ روپے معاف کران کہین تہ تمہ سات پتہ روزان وی کران ڈی سی صاحبس نک نلکہ فٹر واپس تو اس آب گاڑ اس سوئی آب۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں جلد از جلد پینے کا پانی فراہم کیا جائے تاکہ انہیں رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں مزید دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے غزالہ نثار کی رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے آرہل اور آریگام علاقے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آرہل پلوامہ کے لوگ محکمہ جل شکتی سے نالاں ہیں۔ علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے سینئر لیڈر سجاد رینا نے محکمے کے خلاف خاموش احتجاج درج کرایا۔ ان دونوں علاقوں کی مشکلاتوں کا ازالہ کرنے کی غرض سے محکمہ جل شکتی جل جیون مشین کے تحت آرہل علاقے میں ایک واٹر ریزروائر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس سے ان دونوں علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس ضمن میں محکمہ جل شکتی نے ضلع کے آرہل علاقے میں ایک جگہ زمین کی نشاندہی کی ہے، جبکہ محکمے کے گراؤنڈ واٹر ڈویژن نے اس ضمن میں پانی کی سطح اور دیگر چیزوں کی جانچ کی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ واٹر سے بھی ٹیسٹ مثبت ہیں اور اب ریزروائر یہاں پر تعمیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن چند دن گزرنے کے بعد اس کام کو تیسرے گاؤں یعنی نکیس میں منتقل کر دیا گیا، جو ان علاقوں سے کافی دور ہے۔ یہاں پر گراؤنڈ واٹر ڈویژن سری نگر نے اس سائٹ کو جیو ٹیگ کیا اور سوائل ٹیسٹ کیا، ڈرون سے ٹیسٹ کیا، کیپیسٹی آف واٹر انہوں نے وہاں پر دیکھا، ایگزامن ہوا، تو اس کے بعد ہم نے سنا اس سائٹ کو چینج کیا گیا ہے، جہاں پر ہم اس وقت ہے یہاں پر انہوں نے سائٹ کو چینج کیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں ڈی سی صاحب پلوامہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ
स्कीम स्कीम आरी हल और आरी गांव के हक में है। वो पिछले 10 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने ड्रोन से टेस्ट भी किया है, सॉइल टेस्ट भी किया है, लैंड भी आइडेंटिफाई हुई, लेकिन बदकिस्मती से रात की तारीख ही में उन्होंने नामनक्लेचर चेंज किया है और आरीहल आरीगामा को छोड़ के उन्होंने निकस में स्कीम रखी है। बड़ी आबादी का मसला है, हम चाहते हैं कि आप इसमें इंटरवीन करें और ये जो मसला है इसको हल करें। ज़राअत के मौसम के करीब आने के साथ ही गांदरबल ज़िले में काओबाग नुनर टाउन के रिहायशियों ने ज़िला इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो चंद्र आबपाशी नहर को ख़त्म करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि वीरान होने के बाद उन्हें आने वाले सीज़न में अपने खेतों और बागात को सैराब करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि आबपाशी और सैलाब कंट्रोल डिपार्टमेंट इस इलाके में आबपाशी की नहर को ज़ाय करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गुज़िश्ता साल जंदर आबपाशी की नहर को अपने तौर पर ज़ाय करने पर मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी हमें बताया गया था कि एक बार जब ये धान का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो वो डिसलेटिंग का अमल शुरू कर देंगे, लेकिन आज तक ये अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये कनाल जो है इसके नीचे बहुत सी ज़मीन है, बहुत ज़मीन। इसमें इस वक्त मौजूद 2 कनाल का पानी भी, 2 कनाल के लिए पानी भी जाएगा नहीं। लिहाजा करके हमारी गुजारिश है डीसी साहब से, इरिगेशन का लोगों से कि ये हमको ये कनाल ठीक करके देगा। किसानों ने यह भी कहा कि अगर काऊबाग से गांदरबल तक आबपाशी की नहर को इस साल साफ नहीं किया गया तो हज़ारों धान की ज़मीन पर मुश्तमिल पूरी ज़रई ज़मीन बंजर हो जाएगी। मेहरबानी कर कोल पाज कर आब ब्रोट पकन तकरीबन 4,000-5,000 कनाल जमीन बुथ रेगा वाल अगर कर तम पंच सोमरावान, पंच सत खालान सह पन खोल तो पे लेबर बिचार दिवान तम क्या करनस, तम जाय तम दिवान रॉपियस 20,000 अत मा तकरीबन 50 फुटन में रॉपियस 20,000 खर्च। ये जंदर आबपाशी नहर हमारे खेतों को आबपाशी का वाहिद ज़रिया है। किसानों ने कहा कि अब तक नहर मुकम्मल तौर पर बंद है। मुकामी लोगों ने आला हुक्काम से अपील की है कि वो इस मामले को देखें। मुंसिफ टीवी के लिए गांदरबल से सैयद राजा की रिपोर्ट। ज़िले अनंतनाग के छी में CRPF 40 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। CRPF के तिब्बी माहिरीन ने इलाके के सैकड़ों लोगों का इलाज व मुआलजा किया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। इलाज की सहूलत हासिल करने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। ज़िले अनंतनाग के छी में CRPF 40 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। CRPF के तिब्बी माहिरीन ने इलाके के सैकड़ों लोगों का इलाज किया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की। इलाज की सहूलत हासिल करने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। मकामी लोगों ने CRPF की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम की सताइश करते हुए फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से हमारे इलाके में माकूल तिब्बी सहूलियात फ़राहम नहीं की गई हैं। हम वक्तन फ़ौक़तन फ़ौज की जानिब से हमारे इन पसमानदा इलाकों में ऐसे मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाया जाता है और इलाज व मुआलजे के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी दी जाती हैं। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होते हैं। जो गरीब आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जहाँ कमज़ोर होते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उन लोगों को आज यहाँ फ़ायदा मिल गया है। क्योंकि आज तो ये ज़ुकाम की बीमारी है, मतलब छाती की बीमारी है, उसका इलाज मुआलजा यहाँ चल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 40 बटालियन CRPF का और CRPF CO का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे हल्के में एक मुनक़द किया। गरीबन गुरबातन वातन दवा सारे खदमत कर लुकन शुक्रगुजार आयंदा हमेशा लगन अम लुकन वारा फायदे वातान राहत वातान लुकन वातान दवा बनान मुफ्त सारे इलाज वातान मुफ्त अम राहत वातान लुकन यह वक्त अहम जरूरत गरीब गुरबातन दवा वातान फायदे वातान वारा। कमांडिंग ऑफिसर RP मीना ने बात करते हुए कहा कि CRPF की जानिब से लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए साल में बहुत सारे मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया जाता है ताकि आवाम की मदद हो सके। जहां पर भी लोगों को ज़रूरत होगी, ना ही सिर्फ मेडिकल कैंप बल्कि और कई तरह के काम हमारे इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अमल में लाए जाते हैं और आने वाले दिनों में
और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आज ही CRPF की तरफ से फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिकल दवाइयों का वितरण का एक प्रोग्राम रखा गया है। इससे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हम लालन में किया था और भी ऐसे करते रहने हैं, आने वाले समय में करते रहेंगे। 8-10 कैंप वो करने हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पे लोगों को, ज़रूरतमंदों को दवाई मिल सके। जहाँ भी ज़रूरत होती है CRPF जहाँ भी डिप्लॉय होती है, सभी ये कोशिश करती है कि हर बंदा, देश का नागरिक स्वस्थ रहे। उसी बेस पे हर जगह कैंप किया जाता है, नॉट इन कश्मीर ओनली। दूर दराज इलाकों में इस तरह के तिब्बी कैंपों की कीमत सिर्फ वहाँ के मकीन ही जान सकते हैं, क्योंकि इलाज के लिए दूर का सफ़र करना एक मुश्किल दह मरहला होता है। साथ ही अखराजात भी बहुत होते हैं। ऐसे में मरीज़ इलाज की परवाह न करके सुस्ती बरतता है, जिसकी वजह से उसकी जान को ख़तरा लाहक हो जाता है। मगर फ़ौज की इस पहल से इन गाँव वालों को बड़ी आसानी से तिब्बी मुफ्त सहूलत मैसर आ गई है। इसके लिए गाँव वालों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में महकमे सेहत की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तिब्बी शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी अदा करने वाले डॉक्टरों की इज़्ज़त अफजाई की गई। तकरीब की सदारत सेक्रेटरी बराए हुकूमत सेहत और तिब्बी तालीम भूपेंद्र कुमार ने की। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और शूपियाँ और SSP पुलवामा तकरीब में मौजूद रहे, जिन्होंने तिब्बी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर सेक्रेटरी बराए हुकूमत सेहत और तिब्बी तालीम भूपेंद्र कुमार ने बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों से कोविड मुस्बत केसेस में दुनिया भर में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मुस्बत केसेस में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज़ कम है। कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस में एक इंक्रीज़ नज़र आया है और वो इंक्रीज़ पूरी कंट्री में है। जम्मू कश्मीर में भी वो इंक्रीज़ है और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि जो इस बार का कोविड वेरिएंट जो ज़्यादा कम्युनिटी में जिसकी प्रेवलेंस है, जिसको XBB 1.16 कहा जा रहा है, उसमें जो सिकनेस पेशेंट्स में वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने अपने लेवल पे जो तैयारियां करनी होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की रेडीनेस, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स का फंक्शनल स्टेटस, दवाइयों की अवेलेबिलिटी या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना, वो सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। देखिए, यात्रा के लिए हर साल हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारी करता है। इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ यात्रियों के लिए और बाकी जो लोग हैं उनके लिए मुहैया। आज़म शेर अदब शिमाली कश्मीर की जानिब से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में एक महफिल हमदनात और मुशायरे के हवाले से एक अजीम शान प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें शिमाली कश्मीर से वाबस्ता तमाम ज़ी-इज़्ज़त कलमकारों, नात ख्वाहों, अदीबों और शायरों के साथ साथ स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक के अजीम महीने के हवाले से रौनक भी डाली। बारामूला ज़िले से बल्कि पूरे सूबे कश्मीर से शायर हजरात और नाज खान हजरात और उलमा हजरात तशरीफ़ ले आई हुई हैं। पूरे कश्मीर में इस माह मुबारक में जगह जगह मसाजिदों में, बड़ी बड़ी इजहारों में, मदारसों में, दारुल में उनकी शान में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एजाज़ी तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। महफिलों का ये गर्ज़ गायद होता है, ये मुद्दा और मकसद होता है कि शान मुक़द्दस, शान अज़मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान बढ़े, उनका वक़ार बढ़े। इस वक्त माह मुबारक का महीना है, पाक महीना है। इसमें अक्सर ऐसी महफिलें चली आती है। हमने बज़्म शायर अदब शिमाली कश्मीर, जो कि नॉर्थ कश्मीर में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अदब के लिए, कल्चर के लिए काम करती है, आज इसने इस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में ये इसका नातिया और हमदिया एक मुशायरा रखा था, जिसमें इलाके के बड़े बड़े शायरों ने इसमें शिरकत की और बच्चों ने खासकर इसमें हिस्सा लिया। और इस हमारा मकसद यही होता है कि हम अखलाक की तरबियत इससे बच्चों में
उजागर हो जाए कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में ये बच्चों में कैसी ड्रग्स वगैरह है, उनका खात्मा भी होगा और बच्चे। जैकली तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास GOC MB एरिया और JKLI रिजिट ने कर्नल ने की। इनमें फूलों की चादर चढ़ाना, प्लैटिनम जुबली ट्रॉफी की नकाब कुशाई और तारीख़ी वाक़े के मौके पर रिलीज़ शामिल फर्स्ट डे कोर थी। उन्होंने आला तरीन तरबियती मेआरात हासिल करने की तलक़ीन की और जैकली रेजिमेंट में मुसल्लह अफ़वाज और कौम की तामीर में उनके किरदार पर ज़ोर दिया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अनंतनाग के हाजी दंतर में रमज़ान मुबारक के मुतबर्रिक अय्याम में पानी का फुक़दान, मकीनों ने किया महकमे जल शक्ति के खिलाफ बरहमी का इजहार। CRPF 40 बटालियन की जानिब से 6 अनंतनाग में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम, सैकड़ों ज़रूरतमंद हुए मुस्तफ़ीद। और जैकली रेजिमेंटल सेंटर ने आज यानी 15 अप्रैल 2023 को श्रीनगर में अपनी प्लैटिनम जुबली की तकरीब बनाई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुनसिफ अब डेन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के नाजरीन नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें और ये चैनल आपके टीवी सेट पर दस्तयाब रहेगा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इमरान अली बेग को दीजिए इजाज़त।